Okay, let us begin. Hello, everybody. We are doing first chapter today in 12th standard State Board English textbook. And the name of this story, the lesson is very in a form of an interesting story. Name of the story is An Astrologer's Day. Okay, and it is written by R.K. Narayan. Okay, so before we study about the poet, let us An Astrologer's Day. So what do you mean astrologer? Okay, so astrologer is a person who tells you the forecast, correct, about your future, predicts your future. तो prediction होता है मतलब कि भविष्यवाणी करना, हिंदी में जिसे हम शायद ज्योतिषी कहते हैं, कि जो आपके नक्षत्र ग्रहमान देखकर आपको बताता है कि क्या संभव है, क्या होने वाला है वगैरह, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर. ओके, तो एस्ट्रोलॉजर के एक दिन उसके जीवन के बारे में हम बात करने वाले हैं. इसमें ये कहानी है आर.के. नारायण की. ओके, सो और लेट मी टेल यू इन ब्रीफ व्हाट इट इज अबाउट. ये कहानी जो भी है इसको ब्रीफ में यूट्यूब चैनल पर है, जिसका लिंक मैं पोस्ट करूंगी अभी, तो आप उसे देख सकते हो. करेक्ट, द सेम स्टोरी हैज बीन गिवन इन अ सिंपल फॉर्म. पूरे चैप्टर की समरी दी गई है, लेकिन आज हम इसे एज एन इंग्लिश लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे. सो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, लेट अस बिगिन बाय आर.के. नारायण. जस्ट अ सेकंड. यस, सो आर.के. नारायण born 1906 to 2001, Rasipuram Krishna Swami Iyer Narayana Swami was, that is his full name, R.K. Narayan. Okay, was one of the best known novelists among English Indian writers. He is the author of 14 novels, 5 volumes of short stories, number of travelogues, and has a collection of non-fiction to his credit. He has also written My Days. In 1975, he has created his own imaginary town, which is the मालगुडी. तो अगर आपको याद हो, दूरदर्शन पे ये मालगुडी डेज करके एक सीरियल आता था. ओके, जहाँ पर एक छोटा बच्चा था स्वामी, और अलग अलग कहानियां उस गांव के, या ना, छोटा सा एक गांव जैसा शहर था, जिसकी कहानियां बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से बताई गई. करेक्ट, बहुत ही सिंपल स्टोरी, थोड़ा सा एक हास्य होता था उसमें, और it would really give you a deep meaning. So let us talk about his novel The Guide, which won him साहित्य अकेडमी अवार्ड. और साहित्य अकेडमी अवार्ड एक बहुत ही बड़ा अवार्ड लिटरेचर वर्ल्ड में होता है, जो आर.के. नारायण ने को दिया गया था. And in this, he typically portrays the peculiarities of human relationships, the ironies of Indian daily life. His style is graceful, marked by genial humor. तो humor जिसे कहते हैं हास्य, elegance and simplicity. So let us begin the story. An Astrologer's Day. एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी के जीवन का एक दिन. So you can see that something is written in the blue there. Those are the meanings for you. So do not write anything, just listen first. Okay, so I will read first and explain you in short the meanings and the difficult words. An Astrologer's Day. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writings. Now, the first sentence only is a long sentence. Correct? What does it say? Punctually. तो punctual माने क्या? समय का पाबंद. तो हमेशा की तरह midday, दोपहर के समय, उसने अपनी बैग खोली और अपने प्रोफेशनल इक्विपमेंट, प्रोफेशनल जो उसका काम है, उसके जो चीजें हैं उनकी जो यूज करता है, दैट ही हैज रिमूव्ड. अब वो क्या चीजें हैं? एक एस्ट्रोलर के बैग में क्या होता है? यूजुअली a dozen cowrie shells. When you say cowrie shells is what? She's animal, जो कौड़ियां होती है, क्या बोलते हैं उसको? सिप्पी, चंक जैसे छोटी छोटी. ओके, a square piece of cloth,
with obscure mystic charts. Obscure मतलब जो समझ में ना आए ऐसे कुछ तो भी चार्ट, कुछ नक्शे, कुछ यंत्र टाइप बने हुए हैं, एक नोटबुक और एक राइटिंग्स. नाउ व्हेन यू से दिस पामायरा राइटिंग्स इज अ पाम माने एक पत्ता, पुराने जमाने में जिस पर लिखते थे वैसे वाला एक उन्होंने निकाला, ये उनके बैग में है. ओके, सो द क्वेश्चन गोes like this: what were the professional equipments of astrologer? Okay, yeah, astrologer bag contained following things. तो उसमें से आपको टिक करना है क्या चीजें उनके बैग में थी, क्या नहीं थी. ऐसे क्वेश्चन आ सकता है. When you are reading, read with full focus, full attention. Okay, carefully. Second line goes: his forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. Okay. Second sentence describe कर रहा है उसके looks, कि ये जो एस्ट्रोलॉजर है, ये जो ज्योतिष है, उसका अपीयरेंस कैसा है. तो उसके फोरहेड पे, फोरहेड माने ये माथा आगे का, was resplendent. तो resplendent is bright, dazzling, एकदम चमकते हुआ उसका ये जो फोरहेड है. with sacred ash, underline sacred. sacred is पवित्र, ash is विभूति, विभूति जो हम लगाते हैं, and vermilion. vermilion is क्या हिंदी में जिसे हम सिंदूर कहते हैं, रेड कलर का. ठीक है, तो वो लगा हुआ था उसके फोरहेड पे. And his eyes sparkled. Sparkled is shining with a sharp abnormal gleam. Gleam माने look, एकदम ऐसे ध्यान से. Actually वो देख क्या रहा है, वो look for कर रहा है. Look for is a phrase which means to search. Okay, तो look माने देखना नहीं, अगर look के साथ for लग जाता है तो वो phrase बन जाता है. फ्रेजेस के ऊपर एक और चैप्टर डालेंगे. तो जब हम लुक फॉर करते हैं उसके बाद प्रेपोजिशन बन जाता है, तो इसका मीनिंग हो जाता है लुक फॉर का टू सर्च, खोजना, ढूंढना. ठीक है, ये यहाँ पर. सो टू लुक फॉर इज टू सर्च. तो एक्चुअली वो अपने कस्टमर्स, ग्राहकों को ढूंढ रहा था कि कोई तो मिल जाए. बट विच इज सिंपल क्लाइंट्स. क्लाइंट्स अगेन हियर मींस कस्टमर्स. तो यू नो टू वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग, सिनोनिम्स कहते हैं, कस्टमर्स, क्लाइंट्स. took to be माने समझ लेना, मानते थे कि दिस इज अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड, कि जैसे कि ये ज्योतिषी बहुत ही ज्ञानी है और इसे कुछ दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं और ये हमें कुछ, इसके पास कुछ पावर है और ये हमें हमारे भविष्य के बारे में कुछ बताने वाला है. दिस इज अबाउट इट. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. It says that the power of his eyes was considerably enhanced by their position. Position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. तो क्या कहा है? Power of his eyes was considerably enhanced. Enhanced is to improve, increase, बढ़ जाना. उसकी आंखें और पावरफुल लगती थी. क्यों? क्योंकि वो ऐसी पोजीशन में थी, उसके फोरहेड जो बिल्कुल पेंटेड और उसकी ऐसी बड़ी मूछें और ऐसी आंखें. Direct stream down his cheeks. Even a half-wit's eyes. तो half-wit माने क्या? मंदबुद्धि, stupid person. उसकी आंखें भी चमकती हुई दिखेंगी क्योंकि ऐसे तो पूरी फोरहेड भरी हुई है और बड़ी बड़ी मूछें हैं, तो आंखें चमकती हुई दिखेंगी. दैट इज व्हाट द राइटर sees. You can see how vividly he has described. Okay, then comes to crown the effect, he wound a saffron colored turban. To crown the effect, crown माने उसके ऊपर से ज्यादा शोभा बढ़ाने के लिए उन्होंने सिर पर सैफ्रॉन कलर, अंडरलाइन सैफ्रॉन. सैफ्रॉन इज भगवा कलर, ऑरेंज कलर, जो आपने साधुओं को देखा होगा. ठीक है. ही वाउंड, वाउंड इज WIND, वाइंड का पास्ट टेंस है.
वाइंड माने बांधना, टाई, TIE, टाई, बांधना। तो उन्होंने बांधा हुआ था भगवा कलर का टर्बन, अंडरलाइन टर्बन इज पगड़ी, ओके, इन हिंदी यू कॉल इट पगड़ी, अराउंड हिज हेड. This color scheme never failed. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. Dahlia is flowers के नाम है, cosmos और dahlia flower. और bees मधुमक्खी, तो जिस तरह मधुमक्खियां आकर्षित होती हैं फूलों पर, वैसे लोग इसकी इस तरह का गेटअप देख के, भगवा कलर के कपड़े और फोरहेड पे बहुत सारा सिंदूर लगाकर और ऐसे बैठा है, तो लोग एकदम भागे उसके पास आते थे. He sat under the boughs of a spreading tamarind tree. Sat under the boughs, underline boughs, BOUGHS. Boughs माने क्या? Small plants, shrubs. ये जो यहाँ इनफैक्ट टेक्स्ट में दिख रही है छोटे छोटे पौधे, ओके, of a tamarind tree. Tamarind is क्या? इमली का पेड़. Which flanked a path running through the town hall. Flank में एक कोने में, रोड के एक कोने में, रास्ते के कोने में एक इमली के पेड़ के नीचे छाया में ये बंदा अपना जो एस्ट्रोलॉजर है बैठता था. It was a remarkable place in many ways. अभी इस जगह का वर्णन, तो अब तक राइटर ने एस्ट्रोलॉजर का वर्णन किया, उसके फिजिकल अपीयरेंस का और उसके पास क्या चीजें हैं. और नेक्स्ट ही इज डिस्क्राइबिंग, इन द नेक्स्ट फ्यू लाइंस ही इज डिस्क्राइबिंग द प्लेस, कि किस जगह पर बैठे हैं. ओके, तो अ सर्जिंग क्राउड वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन. तो ये जो कोना है टाउन हॉल से जाता हुआ रोड, ठीक है, और उस रास्ते के, उस सड़क के बाजू में एक इमली का पेड़ जिसके नीचे ये बैठा रहता है, वहां पर एक बहुत ही बढ़ती हुई क्राउड, क्राउड माने गर्दी, हमेशा ऊपर नीचे मीन्स आते जाते रहती है रोड पे, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. अ वैरायटी ऑफ trades and occupations was represented all along its way. Medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all, an auctioneer of cheap cloth who created enough din all day to attract the whole town. अब इसमें से difficult words क्या है? तो उस सड़क पे बहुत सारे व्यापार करने वाले या बेचने वाले लोग जो है रुकते थे. दवाइयां बेचने वाले, चोरी का सामान बेचने वाले, भंगार, जो भी चीजें थी, जादूगर बैठे रहते थे, सस्ते में कपड़े बिक रहे हैं. जैसे कि आपने एक आम सड़क देखी हो जहाँ पर मार्केट लगती है, तो वैसे वाला ये मार्केट था जहाँ पर कुछ लोग, बहुत सारा आवाज, अंडरलाइन वर्ड DI एंड डिम, आप देख पा रहे हो वहां पर स्पेलिंग्स और मीनिंग्स दिए गए थे साथ में. तो दिन ऑल डे, दिन इज नॉइज, पूरा दिन आवाज कर. Next to him, in vociferousness, came a vendor of fried groundnuts. अब इसी सड़क पर इस एस्ट्रोलॉजर के बाजू में बिल्कुल ठीक था कौन? ग्राउंडनट बेचने वाला. कैसा? फ्राइड ग्राउंड, सेंगदाने बेचने वाला. ठीक है. और वॉसिफरसनेस माने बहुत ज्यादा शोर मचाने वाला, आवाज से ग्राहकों को बुलाने वाला. Who gave his ware a fancy name each day. Underline ware, 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 नोट करें. ये वेयर माने क्या? सामान, जो भी वो बेच रहा है उसको वेयर कहते हैं. ठीक है. तो he was giving his ware a name. रोज अपने मूंगफली को, जो मूंगफली बेचता था, शेंगदाने बेचता था, उसे रोज एक नए नाम से पुकारता था. तो क्या कहता है? बॉम्बे आइसक्रीम, वन डे, एंड ऑन द अदर डे दिल्ली आलमंड, ये तो बादाम है, बादाम. ठीक है, बेच रहा है शेंगदाने. एंड ऑन द थर्ड डे राजास डेलिकेसी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. And people flock to him. Flock to him माने उसके पास दौड़े दौड़े आते थे. तो ये एक तरीका था उसका ग्राहकों को अपनी ओर बुलाने का, आकर्षित करने का. A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. तो इस मार्केट जैसी जो सड़क थी जहाँ पर ये मार्केट लगती थी, लोग आते जाते थे, तो कई लोग जो सेंगदाने या मूंगफलियां खरीदने आते थे वो एस्ट्रोलॉजर के पास भी आ जाते थे, रुक जाते थे वहां पर. The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. तो इस एस्ट्रोलॉजर के पास अपना कुछ लाइट का सामग्री नहीं था, तो जो
ग्राउंडनट वाला, जो मूंगफली वाले की यहाँ जो लालटेन थी, जो लाइट थी, एक ब्राइट फ्लेम जल रही थी, उसी की रोशनी में ये अपना कारोबार जो है, बिजनेस जो है, एस्ट्रोलॉजर चलाता था। ठीक है, सो लेट अस स्टॉप हियर एंड लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस। ओके, तो पूरी कहानी अगर आपको जाननी है तो पूरी कहानी के लिए आपको मैं एक लिंक डालूंगी, आप वो पूरी कहानी उसमें आप सुन सकते हैं शॉर्ट में। लेकिन हमें सिर्फ कहानी नहीं समझनी है, हमें ये भी देखना है कि ये वर्ड्स क्या है, न्यू वर्ड सीखने हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देखना है, पास्ट टेंसेस पे ध्यान देना है। ठीक है, so we are going to study not only the story, we are not only going to enjoy the story, but we are also going to learn new words. We are also going to learn how to answer the different questions. Okay, whether you have understood the whole plot or not. ये कहानी के मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो आपके आंखों के सामने वो सड़क और वो गधी, वो इमली का पेड़, उसके नीचे ये चित्रण आ जाना चाहिए। करेक्ट, उस आ गया कि नहीं, कि वो एस्ट्रोलॉजर कैसे दिख रहा होगा, पेटा लगा के, ऑरेंज कलर की पगड़ी बांध के और पूरे फोरहेड पे सिंदूर लगा के, करेक्ट, पोटली लेके बैठा है, सिंगदाने वाला बाजू में बैठा है, तो इट क्रिएट्स अ इमेज, अ पिक्चर। ओके, सो लेट अस